دوستو جموں اینڈ کشمیر ایڈمنسٹریٹو سروس کا رزلٹ آ گیا ہے اور اس رزلٹ کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ایک ہی گھر کے دو بہن اور ایک بھائی نے کامیابی حاصل کی ہے. دو بہنوں میں ایک کا نام اسرا آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر میں اور دوسری بہن کا نام ہما ہے اور ایک بھائی یہ سہیل ہے. انہوں نے کامیابی حاصل کر کے سول سروسز میں تینوں بھائی افسر بنے ہیں اور اس کامیابی کی سب سے خاص بات یہ ہے, سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان تینوں نے باضابطہ کہیں کوچنگ نہیں کی بلکہ سیلف اسٹڈی سے انہوں نے کامیابی حاصل کر کے اب یہ تینوں بھائی بہن افسر بنیں گے. ان کے والدین نے بچوں کو پڑھانے کے لیے بے انتہا محنت کی. جگہ جگہ انہیں کئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا اور والدہ نے تو اپنے گہنے گروی رکھ دیے. ان کے والدین نے بچوں کو پڑھانے کے لیے اپنی کل جمع پونجی خرچ کر ڈالی اور آج یہ تینوں بھائی بہن ایک اہم تاریخ انہوں نے لکھ ڈالی ہے. یہ تینوں بچے, یہ تینوں کینڈیڈیٹ جو آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں, چناب علاقہ کے ضلع ڈوڈا کے کہار علاقہ کے رہنے والے ہیں. بغیر کوچنگ کے اگر سول سروسز امتحانات میں کامیابی حاصل ہو جائے تو اس سے بڑی قابل تعریف بات اور کیا ہو سکتی ہے. یہ جموں اینڈ کشمیر کی خاص بات ہے کہ یہاں کے بچے نہ صرف یہ کہ ریاستی سول سروسز میں کامیابی حاصل کرتے ہیں بلکہ UPSC کے میدان میں بھی ان کی کامیابی کی شرح بہت نمایاں ہے. اور خاص طور سے یہ تینوں بھائی بہن ایک ہی گھرانے کے ہیں اور انہوں نے جو ایک تاریخ رقم کی ہے یہ پورے جموں اینڈ کشمیر کے لیے ایک مثال ہے کہ ایک چھوٹے گھرانے سے آنے والا بچہ بھی اگر محنت, ڈیڈیکیشن اور اپنی صلاحیت سے چاہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو آئیے دوستو ہم ان تینوں سے ہوئی گفتگو کا خلاصہ سنتے ہیں اور ان تینوں کی کامیابیوں کے راز کو ہم سمجھتے ہیں. آپ سے پوچھوں گا افرا کہ اب فیملی میں تینوں سلیکٹ ہو چکے ہیں, پاپا کا کتنا, آپ کا پاپا جو آپ کے والد صاحب ان کا کتنا سٹرگل رہا ہے اور کتنی کشمکش انہوں نے آپ تینوں بچوں کے لیے اپنی لائف میں کی ابھی تک؟ ویسے اس کو ورڈز میں بتانا بہت ناممکن ہو جائے گا کیونکہ دو پیرنٹس دونوں نے امینس سیکریفائسز کیے ہیں. ہماری مدر نے تو گولڈ بھی بھیج دیا تھا. او مائی گاڈ, کیس کوالیفائی کرنے کے لیے ان بچوں کی تعلیم کے لیے کیا بات ہے. نیشن وانٹس ٹو نو کہ کیا مطلب, میں ان کے جذبے کو سلام کرتا ہوں, میں ان کے حوصلے کو سلام کرتا ہوں. یہ ایموشنل ہے تینوں, ان تینوں نے کیس کوالیفائی کیا ہے. ان کی امی نے اپنا سونا, اپنی جیولری تک بیچ دی تھی ان بچوں کی تعلیم کے لیے. کیا بات ہے, انبلیویبل. اللہ کی قسم, ایسے والدین بہت کم ملتے ہیں اور ایسے بچے بہت کم ملتے ہیں. بہن میں تو سلام کروں گا, پوری جینٹ کے آپ کو دیکھ رہی ہے. جی میں اس بارے میں بولنا چاہتی ہوں کہ جب ہمیں کچھ فائنینشیل پرابلمس آ گئی تو ہم نے بہت ساروں سے مدد مانگی جن کی ہم نے ہیلپ کی تھی, کیونکہ ہمارے والد صاحب کے جو تھے کچھ انویسٹمنٹس وہ تھوڑے سے رانگ چلے گئے تھے. تو ہم نے بہت ساروں سے مدد لی, لیکن اس ٹائم پر لوگوں نے یہ کہا کہ کیوں پڑھاتے ہو آپ, کیوں جا رہے ہو شہروں میں, اور اوپر سے لڑکیاں تو دوسرے گھر میں جانے والی, ایک لڑکی کے لیے کافی ہے جتنا آپ کماتے ہو. اور پھر میرے والد صاحب نے کہا کہ کوئی بات نہیں. میری مدر کو بہت زیادہ برا لگا اور انہوں نے کہا کہ میں نے جو اتنے مطلب سال میں گہنا کمایا ہے تو میں یہ بیچ دیتی ہوں. تو پھر اوپر سے ہمارے مدر کے ہیلتھ کے ایشوز بھی تھے, ان کا بھی مطلب کافی اسپینڈنگ تھی. تو پھر اس وقت پر اس رات میری ماما کو بہت زیادہ مطلب اینزائٹی اور پین تھا, لیکن پھر پاپا نے کہا کہ کوئی بات نہیں, اگر ابھی آپ یہ گولڈ بیچ رہے ہو یہ تو فزیکل شیپ میں ہے, لیکن اگر کل کو انہوں نے کچھ کیا تو وہ ایسا ایسٹ ہوگا جس کو کہ موٹیویشن بنے گا, جو کہ ایسا ہوگا کہ وہ آپ سوچ نہیں سکتے ہو. تو پھر میری مدر نے کہا چلو, مجھے ایسا نہیں لگا, پر مجھے لگا یہ کہ اس وقت پر ہمیں کسی نے مدد نہیں کی اور ایسے وقت پر لوگوں کا ساتھ نہ ہونا تو بہت ہمارے لیے ہمارے پیرنٹس ہی سب کچھ, ان کا موٹیویشن, ان کی کا ہی سپورٹ اور کچھ نہیں تھا. مطلب یقین مانے انبلیویبل ہے گائز. میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک ایسی سٹوری ہے جس نے رونگٹے کھڑے کر دیے ہیں میرے. کیس تینوں نے کوالیفائی کیا ہے, الحمدللہ. آئی ایم ویری ہیپی
कि इन बच्चियों ने केएस के इम्तिहान को क्वालिफाई किया और लगभग मुझे इस वक्त 4000 से ज्यादा जम्मू कश्मीर की ऑडियंस लाइव देख रही है। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का मेरे साथ लाइव में ज्वाइन करने के लिए। और सुहेल भाई हैं, हुमा बहन है, इफ्रा बहन है, इन सब लोगों ने इंतहाई मेहनत की है, इंतहाई मेहनत की। इनकी अम्मी ने गोल्ड बेच दिया इनके लिए। आज इमोशनल मोमेंट है, आंखों में आंसू है। मैं तो ये कहूंगा कि अल्लाह की कसम ऐसे बच्चे जो है ना हमारी कौम के लिए बहुत बड़ी एक आते वक्त के लिए नौजवानों के लिए मिसाल है, इंस्पिरेशन है। सुहेल भाई आपसे समझने की कोशिश करूंगा। 2 बहनें केएस क्वालिफाई कर चुकी हैं, सुहेल साहब केएस क्वालिफाई कर चुके हैं। अपना तो पता था कि मेरी मेहनत बहुत अच्छी है, मैं कर लूंगा। क्या बहनों पे भी उम्मीद था? सर मुझे खुद से ज़्यादा तो अपनी सिस्टर्स पे बिलीव था कि ये कर लेंगी, लेकिन सर अपने पे भी बिलीव था कि हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से सर बहुत खुशी हो रही है कि तीनों का हो रहा है। सर यकीन नहीं हो रहा है कि तीनों का एग्जाम क्वालिफाई। एक सपना, एक ड्रीम है। यस सर, सर मेरे डेफिनेटली। मेरे 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 कोई 4 साल के जर्नलिज्म में 4 साल में ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा हूँ डेली तस्कीन से। 4 साल में हर घर में गया हूँ, हर IAS IPS ऑफिसर के साथ इंटरव्यू हुआ है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ इंटरव्यू हुआ है, ऑल इंडिया इंटरव्यू है। लेकिन ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इंटरव्यू है कि हमारे जम्मू कश्मीर में एक ही घर से 3 बच्चों ने केएस क्वालिफाई किया है। मैं इंतहाई बहुत खुश हूँ। मेरे जज्बात इस कदर निकल रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। लेकिन एक ऐसा मोमेंट जहां पर ये क्लियर कर दिया जाता है कि हिम्मत मर्दे तो मद्दे खुदा और मेहनत सबसे बड़ी बात है। देखिए ना मेहनत ने इन्हें कहाँ पहुंचाया। क्या रैंक है आपका? सर मेरा 111 रैंक है। 11 रैंक है। Yes, sir. और क्या एक्सपेक्टेशंस थे इम्तिहान को लेकर? कितनी मेहनत की थी? सरकार कोचिंग तो आपने की नहीं थी? नो सर, सर मेहनत तो बहुत ज़्यादा की थी। कभी सर कभी 8 घंटे लग जाते थे, कभी 10, कभी 12, कभी 2 घंटे भी लग जाते थे। कभी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से बाहर जाना पड़ता था, कंसिस्टेंसी कभी नहीं होती थी। लेकिन ऐसा 2020 से 2022 वाइवा तक ऐसा कोई भी दिन नहीं था जिस दिन मैंने 2 से 8 घंटे ना पढ़ा हो। कभी 2 घंटे, कभी 8 घंटे, हमेशा पढ़ा है। हमेशा हमेशा एक भी दिन कोई। अच्छा, जो लोग कोचिंग करते हैं या कोचिंग्स को प्रेफर करते हैं और यहाँ से दिल्ली जाते हैं, मूव ऑन करते हैं, शिफ्ट करते हैं, फ्लैट्स लेते हैं, इतना खर्चा करते हैं, उन लोगों के लिए क्या एडवाइस है? क्योंकि आपने कोचिंग के बिना इतने बड़े इम्तिहान को जो है वो क्रैक किया है, तो क्या कहना है आपका? सर मुझे तो सर उनके लिए यही कहना है कि हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी होती है। किसी को लगता है कि वो कोचिंग से ज़्यादा बेटर कर सकता है और किसी को लगता है कि वो खुद ही कर सकता है। तो सर नेचुरली कुछ कंडीशंस भी ऐसी थी कि हम कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन सर अपने आप पे भरोसा रख के हमने फाइनली ये कर दिया। तो सर मतलब अपने कुछ मतलब फार्मूलेज बना के, मतलब कुछ ना कुछ करके हमने पेपर्स लिखे, एक दूसरे से हम पूछते रहे, साथ में हम मॉक्स देते थे घर पे बना के। तो वहाँ से हमने खुद से ही सीखा, जो सीखा खुद से सीखा। क्या बात है ऑडियंस, यू हैव टू डिसाइड एंड थैंक यू सो मच। 5000 लोग मेरे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़ चुके हैं इस वक्त, जो मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, जो मुझे लाइव देख रहे हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से और जम्मू कश्मीर रियासत से, बाहर इंटरनेशनल कंट्री से भी लोग मेरे इस इंटरव्यू को वॉच कर रहे हैं। इफ्रा, मैं आपके पास आऊंगा। अम्मी ने इतना सेक्रीफाइस किया है, इतनी हार्डशिप्स देखी हैं, आज वक्त आ चुका है कि अम्मी को रिटर्न करना है, तो कैसे रिटर्न करेंगे? सर उनको कैसे रिटर्न हम कर सकते हैं? उनके इतने सेक्रीफाइसेस हैं जिनको रिटर्न करना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। लेकिन हम हमेशा ये करेंगे कि उनके लिए हम खिदमत उनकी हमेशा करें। और हमारे फादर भी, सर फादर को तो कभी कभी अपनी वो डिग्निटी का भी वो मतलब कत्ल करना पड़ा। और सर हमारे लिए उनको करना पड़ा कि नहीं, जब तक तुम कहीं नहीं पहुंचते हो मैं अपनी डिग्निटी को छोड़ देता हूँ, मैं कुछ भी कर लूँगा। अब्बू की मेहनत थी, कश्मकश था। यस सर, ऐसी जगहों पे उनको जाना पड़ा, काम करना पड़ा जहाँ पर उनकी डिग्निटी के खिलाफ था वो, लेकिन उनने किया हमारे लिए। क्या बात है, क्या बात है। कसम से इतने इमोशंस हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं मुझे खुद। मैं जिस बात को कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, इन बच्चों की मेहनत को देखकर यार, मतलब अनबिलीवेबल। आमिर सुहेल एक्स्ट्रा लेवल पर है। ये मेरे आउट ऑफ रेंज है। ये जो इंटरव्यू है, बच्चों की आंखों में मैं आंसू देख रहा हूँ और कितनी काबिल तरीन बच्चियां हैं और क्या कह रही हैं कि हमारे वालिद ने हमारे लिए कितना फेस किया है। यकीन माने कि मेहनत कामयाब कर सकती है और मेहनत करनी चाहिए। आज खुशी का लम्हा है, इमोशनल मोमेंट भी है, आंखों में आंसू भी है। और मेरे इंटरव्यू ने तो आपको रुला भी दिया है। अभी तक आप मुस्कुरा रहे थे सारे मीडिया वालों के साथ, लेकिन मैं आया, मैंने आपकी आंखों में आंसू ला दिया। खैर, मैं माफ़ी चाहूँगा उस चीज़ के लिए। लेकिन एक सवाल पूछूंगा कि जिंदगी बहुत कीमती होती है, वक्त भी बहुत कीमती होता है। जो नौजवान पढ़ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे?
सर पैगाम यही रहेगा कि वो भरोसा करे अपने आप पे और पढ़े, कंसिस्टेंटली पढ़े और एक वो रैट रेस रहती है वो ना करे, आराम से अपनी जो कैपेसिटीज है, अभी मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को देख लिया तो उसके पीछे लग गए, नहीं, अपने आप को पहचानो कि हम क्या कर सकते हैं, तो उन पे काम करना है, अपनी कैपेबिलिटीज पे, और लगातार कंसिस्टेंटली पढ़ना है और अपने आप पे भरोसा करना है। आपको कब ये महसूस हुआ कि आप जम्मू कश्मीर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का इम्तिहान है आप इसे क्वालिफाई कर सकते हैं? हाउ यू फील लाइक वो कब ऐसी सिचुएशन आई, वो कब ऐसा मोटिव बना, जहन ने कब इजाजत दी और आपने इसके लिए फैसला लिया? सर इसका मुझे लगता है कि हमारे फादर जो है वो काफ़ी सिविक है, काफ़ी सिविक पेट्राइटिज्म है उनमें, तो बचपन से हमारे घर में ये था कि नहीं, अपनी स्टेट, अपनी कंट्री, अपनी मॉरल ड्यूटीज़, तो हमें घर में वो माहौल बन गया था कि हमें कुछ करना है अपने समाज के लिए, जो कमज़ोर तबके हैं, जो अपनी स्टेट है, अपना मुल्क है, उसके लिए कुछ बेहतरीन करना है। और दूसरा ये कि लड़कियों को आगे लेना है, क्योंकि लड़कियों को हमेशा ये कहा जाता है नहीं इनको क्या पढ़ने की ज़रूरत है या इनकी शादियाँ करवा दो, तो वो एक फैक्टर था कि हमारे फादर ने कहा था कि तीनों बच्चे इक्वली इनको करना है और तीनों बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छा, वालिद साहब कहाँ पे हैं? सर वो अभी आ रहे, वो पुंछ में सर उनका कुछ काम है, तो सर वहीं पर होते हैं वो, अभी वो आ रहे हैं। अच्छा, वो आ रहे हैं। जब वालिद साहब ने खबर सुनी कितनी खुशी हुई? वो बोल रहे थे सर अम्मी का है? बस सब वो अभी कुछ रिलेटिव्स आए उनके पास। बैक द कैमरा, अम्मी को बुलाया जाए, लाएं अम्मी को लाएं। एक मिनट, बैक द कैमरा, आप अम्मी को लाने की कोशिश करें हम तक। सुहेल साहब, उम्र क्या है आपकी? सर मेरी 23 ईयर्स है और सर अल्लाह ताला के फजल करम से आई एम वन ऑफ द यंगेस्ट ऑफिसर जिसने 23 ईयर्स की एज में केस एग्जाम क्वालिफाई किया। क्या बात है, माशाल्लाह 23 ईयर्स है, मतलब बहुत कम उम्र के नौजवान हैं। 30 साल उम्र, कभी सोचा था कि ये इम्तिहान क्वालिफाई करना है? सर पहले से ही एम था, 12th के बाद से एम था, लेकिन सर 2017 में मैंने सोच लिया कि अब तो यही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। तो सर उसके बाद ग्रेजुएशन के करने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी उसके बाद, लेकिन सर कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन सर मुझे लगता है कुछ पाने के लिए कुछ करना भी पड़ता है। क्या बात? तो सर मैंने दोनों चीज़ें की, तो बहुत सारे जो ऐशो आराम होते हैं वो खोने पड़ते हैं और 8 से 10 घंटे मुश्किलात, जी बिल्कुल मुश्किलात फेस करनी पड़ती है। 8 से 10 घंटे जो है वो कंटिन्यूसली स्टडी करनी पड़ती है। और बाकी जो थे मेरे सारे फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स जो है कुछ ने यूपीएससी भी क्वालिफाई किया। मेजॉरिटी ऑफ द फ्रेंड्स इंजीनियर्स, डॉक्टर्स हैं जो मेरे बैच के थे, तो वो सेलिब्रेट कर रहे थे। और लेकिन मैं अपने आप पे जो है ये बिलीव था मुझे कि मैं भी एक ना एक दिन अपनी मंजिल पे पहुंचूंगा। तो अल्लाह ताला के फजल करम से बहुत खुशी का मौका इस टाइम।